Okay, once again, good afternoon to all. Now we will start the topic refraction of light. Okay, refraction of light. First, we will define this topic refraction of light. First, note the definition. The bending of light due to the change in the medium is called refraction of light. The bending of light due to change in the medium is called refraction of light. ठीक है? Medium change in the medium means there are various density layer. Different medium have their own density. You know that air, water, glass, all these things have their own density. Someone have more density, someone have less density. Air, density of air is less than density of water. Density of water is less than density of glass. And you know that velocity of light is maximum in air or vacuum. It is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum and 2,99,000 kilometer per second in air. But jointly we take it 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. Velocity of light is maximum in air or vacuum. But what happened when light entered from air to glass or air to water? Because density of water is more than the density of air, the velocity of light became slow when light entered from air to water. And when velocity of light became slow, the path of light get bent. This phenomenon is called refraction of light. Similarly, when light entered from denser medium to rare medium, high density medium to low density medium, in high density medium, the velocity of light is more than the velocity of light in low density medium. So when light enter from high density medium to low density medium, the velocity of light suddenly get increased and it move away from the normal. It means the path of light get bent.
So in both the cases, we observe that when light entered from rare medium to denser medium or denser medium to rare medium, the path of light get changed. Otherwise, light always propagate in straight line. Light always propagate in straight line. But there is a change in the medium of propagation. Then light changed its path. Light became bent. This phenomenon is called refraction of light. So we define the bending of light due to the change in the medium is called refraction of light. Now, rules for refraction of light. There are two rules for refraction of light. First, note it. Rules for refraction of light. There are two rules for refraction of light. Note it. There are two rules for refraction of light. Two rules for refraction of light. First, when light entered, first rules, when light entered from rare to denser medium, it went toward the normal. When light entered from rare to denser medium, it went towards normal. अब इसका डायग्राम ड्रॉ This is rare medium and this is denser medium. When light enters from rare to denser, it bends towards the normal.
This is high density medium, this is low density. When it entered from rear, here speed of light is more and speed of light is slow in second medium. So it bend toward the normal due to change in the velocity, due to slower the velocity. It bend toward the normal. Okay. So this is the first case or first rule for refraction of light. When it entered from rare to denser, it bent toward the normal. Okay, please draw the diagram. And second रूल हम दिखा रहे हैं तो मिटा करके, ठीक है, तो मिटा दे. When there are two rules for refraction of light, तो फर्स्ट लिख लिया. अब सेकंड को लिखो. ये डायग्राम ड्रॉ हो गया, इसको भी मिटा देते हैं. ठीक है, इसका वीडियो भी तुम लोग के पास जाएगा, ग्रुप में भी जाएगा वीडियो. फिलहाल यहाँ पर नोट करते चलो. सेकंड जो है वो ठीक इसका रिवर्स है. व्हेन रे इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन रे इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, it move away from normal. Okay, when ray entered from denser to rare, it move away from normal. ठीक है, नोट करो इसको. when ray enters from denser to rare medium, it move away from the normal. It will move away from the normal. ठीक से क्लियर दिखाई पड़ रहा है? Yes. When ray entered from denser to rare medium, it move away from the normal. और इसका डायग्राम यहाँ पर देखो. ये कोई सेपरेशन मीडियम हो गया. ये हाई डेंसिटी मीडियम, ये लो डेंसिटी. दिस इज नॉर्मल. ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन. एक्चुअली में रे आएगा तो एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, एंगल को मेजर कर लेते हैं, इसी को नॉर्मल यहाँ पर लिखते हैं. स्लेंट रे आएगा,
स्ट्रेट लाइट प्रोपेगेट करना चाहिए, ये पाथ होगा एक्चुअल इसका, लेकिन ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम। when it enter from denser to rare due to low density it move away from normal। लो डेंसिटी है इसीलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट जब बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने पाथ से दूर हटेगा। और जो एक्चुअल पाथ है डाउटेड मतलब अब इस पर आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसे आना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये इस मीडियम से इस मीडियम में आता है, ये पाथ को चेंज कर लेता है, बेंड कर लेता है। इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हटने लगता है। दिस इज द सेकेंड रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन re-entered from denser to rare medium it move away from the normal, ये नॉर्मल से दूर भागता है। तो इसी तरह से दो केस होता है, डेंसर मीडियम से रेयर में और रेयर से डेंसर में, यही दो केस में लाइट जाता है जिससे कि लाइट का बेंडिंग। हम अपने डे टू डे लाइफ में बेंडिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल बहुत सारा अभी इस चैप्टर में मिलेगा। बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू लेंस। तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेचर में स्टार का ट्विंकलिंग करना, डिफरेंट कलर का दिखाई पड़ना, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ही आता है। तो इसका कुछ टॉपिक्स को अभी हम लोग यहाँ पर जानते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर टू लॉज, ये टू रूल्स हो गया। टू रूल्स है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, टू रूल्स है। अब देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज को लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का भी दो लॉ पढ़े थे, रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज है, उस लॉ को हमको जानना है, दो, और रिफ्लेक्शन का भी दो। लेकिन इसको जानने के पहले तो फर्स्ट, बिफोर starting two laws of reflection of light, we have to know the term refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले इसको नोट करते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नया वर्ड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इससे भी फेमिलियर हो जाओगे। न्यू वर्ड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फेमिलियर होने में।
नोट करो इसको, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द रेशियो ऑफ speed of light in air to the ratio of speed of light in air or vacuum to speed of light in given medium is called refractive index. The ratio of speed of light in air or vacuum to speed of light in given medium is called refractive index. इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, ठीक से दिखाई पड़ रहा है सबको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम बाय डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक है। अब जो है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू। By using this symbol mu, refractive index is denoted by this symbol. This symbol is called mu. Refractive index equal to C by V, where C is the speed of light or V is the speed of light in given medium. So mu equal to C by V is the formula of refractive index. This is also known as absolute refractive index. Mu equal to C by V. Refractive index, ratio of speed of light in air or speed of light in given medium. Ratio of speed of light in air to speed of the speed of light in air to speed of light in given medium is called refractive index. यानी कि लाइट का स्पीड एयर में कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में है। वाटर में कितना है? 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितना है? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है, वाटर में है, एयर में है, सब में लाइट का अलग अलग स्पीड है, ठीक है। तो लाइट का स्पीड का जो रेशियो निकालते हैं एयर में 3 इंटू 10⁸ है ना, और
ग्लास, वाटर, सब में जो लाइट का स्पीड है अलग अलग, इसका जो रेशियो निकालते हैं उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी इक्वल टू 3 × 10⁸ है। और वाटर में लाइट का स्पीड है कितना, ग्लास में है 2 × 10⁸ ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी, म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सी बाय वी, तो सी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन भी मतलब गिवन मीडियम ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 10⁻8 10⁻8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 को कटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.5। 1.5 म्यू जी इक्वल टू आया 1.5। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये यूनिट लेस है क्योंकि ये प्योर रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस है, नो यूनिट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। अब तुम वहां पर अपने कॉपी में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सी बाय वी। सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है 2.25, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। ठीक है, देखो कितना निकलता है, अबाउट 1.33 के आसपास में निकलता है। ये 1.5 हुआ, वो 1.3 निकलता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई रेशियो कोई यूनिट नहीं रखता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू जी हो गया 1.5, म्यू वाटर निकालोगे, म्यू डब्ल्यू निकालोगे तो वो 1.3 निकलेगा। तो दो को मिल गया, तो दो को कंपैरिजन करके देखो, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या चीज, ये एक लिस्ट है। ये एक इंडेक्स मतलब लिस्ट होता है, बहुत सारे और सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल है। इसका काम क्या है, तो तुम कंपैरिजन करके इससे बहुत इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कंपैरिजन करके ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जैसे एक का म्यू 1.5 है, एक 1.3 है। म्यू डब्ल्यू निकलता है 1.3, 13 नहीं, 1.3 निकलता है। तो देखो कौन लार्जर है, ये लार्जर है। ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें लाइट का स्पीड कम होता है, क्योंकि ये ग्लास के लिए था। तो तुमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो तुम उससे पता कर लोगे कि उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है या कम है। यहाँ पर 1.5 है, तो ये क्या है, 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्या हो जाएगा, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट का स्पीड इस मीडियम में कम है। जिस मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है। अगर ये दोनों में कंपैरिजन करें ग्लास और वाटर में, तो लाइट का स्पीड वाटर में ज्यादा है, ग्लास में कम है।
तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हेल्प से हम लोग उस सब्सटेंस में लाइट का स्पीड कितना है ये फाइंड कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करके। मान लो म्यू जी हमको ये 1.5 दिया हुआ है, म्यू जी यहाँ पुट कर देंगे। सी कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब भी पूछेगा निकालने के लिए, चाहे जिसके लिए पूछे, ग्लास के लिए पूछेगा तो यहाँ पर 1.5 दिया रहेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे, यही निकलेगा 2 × 10⁸। म्यू डब्ल्यू 1.3 दिया हुआ है, तो सी बाय भी फॉर्मूला लगाएंगे, सी सबके लिए कॉमन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भी निकाल देंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये भी निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में कि लाइट का स्पीड किसमें मोर है किसमें लेस है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख करके। इसका क्या हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उस सब्सटेंस में लाइट का स्पीड ज्यादा है या लाइट का स्पीड कम है। से हम कंपैरिजन करते हैं किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है किसमें कम है। कंपैरिजन करने के साथ साथ हम लोग उसमें पार्टिकुलर वे में स्पीड ऑफ लाइट कितना एग्जैक्टली ये भी फाइंड करते हैं। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये जो अभी हम लोग पढ़े, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका दूसरा नाम भी जान करके रखो, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। इंडिसेस हो गया प्लूरल फॉर्म इंडेक्स का। The ratio of two refractive indices is called relative refractive index. जैसे म्यू जी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ग्लास का, म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू अगर निकालेंगे तो इसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये